हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो ये है हमारे रिएक्ट मास्टरी कोर्स का लेक्चर नंबर 1 एंड इस लेक्चर में हम लोग अपने कंप्यूटर को सेटअप करने वाले हैं जिससे कि हम लोग रिएक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकें अपने कंप्यूटर में। सो द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू डू इज़ हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे कंप्यूटर में Node.js इंस्टॉल्ड है कि नहीं। सो हाउ कैन वी डू दैट? First we have to open command prompt by typing cmd and you have to type here node-v. So ये टाइप करने से this will show the version of node you have installed in your computer. अगर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है so that means कि आपके कंप्यूटर में node इंस्टॉल नहीं है। so हमें उस केस में node इंस्टॉल करना पड़ेगा। So node कैसे इंस्टॉल करेंगे? It is simple. You have to go to any browser. I am using Chrome here, and you just have to type download node.js, and you will click on the first website, and here Windows installer, and it will start to install. So now as you can see, this is the window. You will see after installing the node, you have to click on next. Take next, and then install. So this will install Node.js latest version in your computer. So it is as simple as that. So after installing the node, हमने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें सेटअप करना पड़ेगा Node.js in our code editor which is Visual Studio Code. सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, Node.js एक बार इंस्टॉल होने के बाद हम चेक करेंगे इफ़ Node.js हमारे कंप्यूटर में प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं। सो उसके लिए व्हाट वी विल डू, वी विल ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड फ्रॉम देयर वी विल टाइप node-v and it will tell us the latest version. So as you can see, I have 20.10 installed. So after doing this step, what we have to do? First हमें एक न्यू फोल्डर रेडी करना पड़ेगा. So I have named it folder React tutorial, and here we will right click and open VS Code in this folder. So after opening VS Code, we will make any rough file of JavaScript rough.js, and then we will open the terminal. And here you have to type a simple command which I will give in the description box. You can copy it from here, which is npx create react app, and after this you can name the project name. You can give it anything. I am giving my app. My app is the name of the project we will be working on. You can give it any name, it is as per your choice, but I am giving my app here. So as you will click enter, it will start the installation process and it will take about roughly 5 to 6 minutes. So you can wait. So guys, as you can see here, अभी हमारा VS Code में नोड का सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है, एंड उसके बाद आपको टर्मिनल में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एंड यू विल ऑल्सो सी अ माई ऐप फोल्डर in the directory. So what you can do is you can open and you will see many folders here. Now don't get panicked. ये सभी folders my app का पार्ट है, एंड ये सभी folders हमें ये कमांड ऑटोमेटिक रन करने के बाद बना के देता है. इन कमांड्स में अलग अलग डायरेक्टरीज एंड फाइल्स हैं which I will tell you about more detail. सो अब इन सारी फाइल्स को रन करने के लिए हमें टर्मिनल में एक और कमांड एंटर करना पड़ेगा, विच इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माई ऐप डायरेक्टरी में एंटर करना पड़ेगा, जिसके लिए वी विल यूज़ cd my app.
this command will help us enter in the MyApp directory, and because सारे folders MyApp directory में, तो MyApp directory is the main directory. Directory means files, and here we will run npm start. So this command will start the npm server and it will make our website live. So we will just wait here. सो गाइस, जैसे ही आप लोग npm स्टार्ट का कमांड जो है रन करोगे, सो देन कमांड रन होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा एंड उसमें कुछ ऐसा शो करने पड़ लगेगा आपको। और ये शो हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज ऑल द फाइल्स विच वी हैव इन आवर MyApp फोल्डर। बट इफ इन एनी केस अगर आपका ये ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता है, देन व्हाट यू कैन डू, you can just type local host colon 3000 and this will open this page. So now the question arises that हम ये सब अपने टर्मिनल पे क्यों कर रहे हैं, का इधर और नहीं क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज टर्मिनल डायरेक्टली VS कोड से लिंक्ड है एंड अगर हम इसमें कमांड्स रन करते हैं देन इट इज़ ईजी फॉर अस to understand the things and run the commands. And the second question arises is that what are all these folders, like these all folders, what are these? So these are the files and folders जो कि हमें React स्टार्टिंग से बना के देता है, बट मोस्ट ऑफ दीज इनमें से किसी का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है एक्सेप्ट 4-5 के। इन सब के बिना भी एक नॉर्मल यूजुअल सिंपल रिएक्ट वेबसाइट रन हो सकती है। लाइक फाइल्स इन योर प्रोजेक्ट, index.js, app.js एंड report web vitals.js। इन तीनों फाइलों के अंदर हमारा होता है JSX कोड एंड ब्राउज़र कैन नॉट अंडरस्टैंड JSX कोड। सो अगर ब्राउज़र JSX कोड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तो फिर हमारा ये कोड रन कैसे होता है? फॉर देट वी यूज़ अ टूल नोन एज बेबल। सो बेबल एक ऐसा टूल है जो कि JSX कोड को जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल कोड में कन्वर्ट करता है। एंड वेबपैक एक ऐसा टूल है जो कि सारी फाइल्स के जावास्क्रिप्ट कोड को एक साथ मर्ज करता है एंड उससे जावास्क्रिप्ट फाइल बनाता है नोन एज bundle.js। एंड ये तीनों टूल्स कंबाइन करके कहलाते हैं रिएक्ट ऐप डेवलपमेंट सर्वर। सो नाउ bundle.js बनने के बाद क्या होता है? bundle.js बनने के बाद जब यूज़र लोकल होस्ट 3000 पे आता है देन हमारा रिएक्ट डेवलपमेंट सर्वर उसे index.html की बेसिक फाइल जो होता है वो भेजता है एंड प्लस उसके साथ में जावास्क्रिप्ट का कोड जो कि होता है bundle.js में लोकेटेड उस पूरे को भेजता है। सो दैट इज हाउ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स वर्क। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट जैसे कि हमने देखा था वो सारी फाइल्स विजुअल स्टूडियो के फोल्डर में वो क्या थी? सो ये हैं उन सब के फाइल्स के नेम्स एंड ये किस यूज़ आती हैं। बट इनमें से कुछ 4 या 5 फाइलें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि एक मस्ट होती हैं किसी भी रिएक्ट ऐप के स्टार्ट करने में, जो कि होती हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी ये हैं वो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल्स जो कि आपको हर रिएक्ट प्रोजेक्ट में मिलेंगी। सो ये कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ द index.js फाइल। ये फाइल आपको हर रिएक्ट प्रोजेक्ट में मिलेगी ही मिलेगी बिकॉज दिस इज़ द बैकबोन फाइल ऑफ द रिएक्ट JS। इसी मेन फाइल से बाकी सारी फाइल्स लिंक्स होती हैं और यही एग्जीक्यूट होती है जब भी हमारा रिएक्ट ऐप रन करता है। एंड सेकंड इज द index.html5 which is the skeleton for react app. As you know that HTML is the skeleton, and that next is package.json
एंड package.json। एंड इन दोनों फाइल्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस ये दोनों हमारी सारी डिपेंडेंसीज जो भी हम फाइल में हमारे ऐप में यूज़ करते हैं वो सब लोकेटेड रहती हैं। एंड नोड मॉड्यूल्स, इसका भी वही काम होता है। सो दैट इज़ द मोटा मोटा फंक्शन ऑफ these 5 मेन फाइल्स विच यू विल फाउंड इन एवरी रिएक्ट ऐप। सो गाइस, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होता है। एंड अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें कि हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। सो होप कि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव इन दैट कमेंट सेक्शन। थैंक यू।